हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह आज आपके लिए अकाउंट्स का बेसिकली चैप्टर पोर्शन पूरा लाया हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर वी आर रिकॉर्डिंग फॉर 12th स्टैंडर्ड अकाउंट। तो बच्चों 12th के इस साल के पोर्शन में क्या है, ऑल टुगेदर एक न्यू पोर्शन है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। द चैप्टर्स दैट वी हैव, इफ़ यू सी 90% आर द सेम चैप्टर, दस इट्स नॉट बिग डिफरेंस। ओनली पार्ट इज़ जो करेक्शन थे, जो मिस्टेक्स थे, उनने इसमें करेक्ट किया है। So we'll be starting. What do we have in accounts? Now, before I start accounts, if I ask what was your 11th standard base, तो I feel तुमने 11th में क्या किया था। तो बेसिक्स ये समझा कि अकाउंट इज़ नथिंग बट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। एक बिजनेस एक्टिविटी होती है, जिस एक्टिविटी को लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। थ्रू व्हाट? थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट। बाकी उसमें आपने तो जो 11th में पढ़ा था, वी विल मेक श्योर कि वी रिकॉर्ड 11th स्टैंडर्ड का फ्यू ऑफ द वीडियो सो दैट यू गेट द बेसिक राइट। टुडे आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्टिंग विद द 12th स्टैंडर्ड चैप्टर वेयर आई वुड बी एक्सप्लेनिंग ऑल थिंग अबाउट 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स। Now friends, what do we have in 12th standard? So basically if you see, the chapters are altogether 10 chapters. So if you see last 5 years pattern and this year pattern, so things have not changed. Only more colorful you got the book, and the content and chapter is more detailed in nature. Next, let's start with the chapter. So basically my friend, there are 5 chapters devoted to understand partnership. अगर आप नोटिस करोगे what did you study in 11th, so you realize it was all about basics of account. You started with accounting. What does it deals with? It deals with recording the transactions. Now how do I record the transaction? So you recorded the transaction on the basis of double entry bookkeeping system. What after that? You classified and recorded journal, ledger, later you posted into trial balance, and then you prepare a final account. Okay, what was final account? It was basically nothing but finding income statement, position statement. मतलब यार साल भर बिजनेस करो तो साल के एंड में क्या चाहिए? आई नीड माई प्रॉफिट फॉर द ईयर और माई पोजिशन फॉर द ईयर। ये दोनों हम लोग ने 11th में पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ, किसके बारे में पढ़ा? सो दैट वॉज बेसिकली ए सोल ट्रेडर. So that is what different in 12th. You are not going to deal only with sole trader. Now this year you will be dealing with partnership. So the chapters are more devoted to partnership. Now how many chapters we have for partnership? So the first chapter is about introduction to partnership. What do we mean by partnership? And what is the accounting process of partnership? We won't be dealing a lot of legal issues related to partnership. More than that, we would be dealing with accounting process of partnership. Because since it is accounts, so I have to record and I have to deal with accounting process. Next बच्चों, अब दो, when 2 or more people come together to carry out legal business, we call it partnership. अब जब partnership है तो partnership related क्या होगा? उसका फाइनल अकाउंट होगा। अब फाइनल अकाउंट में क्या आएगा? वही सेम इनकम स्टेटमेंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम विच यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, P&L account or a balance sheet. Next, other than that, let's go to other chapters. तो यार जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप चलाते तो उसको पार्टनरशिप हो गया। बट ऐसा भी हो सकता, there are 2 people or 4 people doing business and we want new partner to admit into business. So that is nothing but called as admission to the partnership. It also can happen the same way you admit a partner. There may be a situation where a partner leaves the partnership. ऐसी भी तो चीज़ें हो सकती है ना कि जहाँ पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ के जाए। अच्छा, हैप्पीली वॉलेंट्री जा रहा, वी कॉल इट रिटायरमेंट टू द पार्टनरशिप। ओके, व्हाट इफ ही डाइज, मतलब परमानेंट जा रहा है, ही इज डाइंग। सो इफ ही लीव्स द पार्टनरशिप ड्यू टू डेथ, वी कॉल इट डेथ ऑफ द पार्टनरशिप. There could also be a situation where voluntary all partner wants to dissolve the partnership. That is called dissolution of the partnership. So basically my friends, if you see it out, what chapters devoted to partnership? First is about introduction to partnership. Second is about admission to the partnership. Third is about retirement to the partnership. Then you have a death, and the last you have dissolution. ओके, कितने मार्क्स का ये पार्टनरशिप आता, किस क्वेश्चंस में आता, कितना वेटेज है, दैट वी वुड बी डीलिंग व्हेन वी टेक द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स. इसके बाद बच्चों जो आगे के चैप्टर्स है वो भी सेम ही है,
We had this bill of exchange previous also, we had this 10 years back, so we have the same chapter today. Now what is bill of exchange? Basically मैं chapter में explain करूँगा. You have a bill of exchange, you have company accounts. तो जैसे नॉन कॉर्पोरेट में पार्टनरशिप था, कॉर्पोरेट में यू हैव अ कंपनी अकाउंट्स, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO, and the last two chapters are devoted to understand the ratio analysis and basically computer used in accounting. So if you see how many chapters total, there are 10 chapters my friend for the 12th standard. First 5 chapter devoted to the partnership, the next 5 chapter basically devoted to non-corporate or maybe bill of exchange, company accounts, also financial statement analysis, and the last you have computer in accounting. So my friend, let's come to each chapter respectively. तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. Since it is my first lecture, I will not try to get everything in detail, but I'll give you the brief about those chapters. तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. तो बच्चों सबसे पहली बात होती है यार पार्टनरशिप का मतलब क्या है. तो वेरी सिंपल, पार्टनरशिप मीन्स जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग लीगली अग्रीमेंट करके बिजनेस करने आते हैं, वी कॉल इट पार्टनरशिप. इफ आई हैव टू डिफाइन, हाउ वुड आई डिफाइन? सो व्हेन 2 or more people come together to carry out legal business with objective of making profit. अब इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे बॉस? तो बेसिक्स आपको समझना है. टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब यू हैव अ मेथड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो व्हाट आर दोज मेथड्स? एंड द लास्ट यू हैव एडजस्टमेंट रिलेटेड टू partnership, all the adjustment related to closing stock, depreciation, bad debt, RDD, all the adjustment we would be dealing with. Next part of the partnership account that you have is we are going to prepare a final account. Sir, अगर अकाउंट्स करके फाइनल अकाउंट नहीं किया पार्टनर का तो फिर पॉइंट ही नहीं है ना अकाउंटिंग करने का. बिकॉज यू नो इट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद ही प्रॉफिट लॉस मिलेगा, फाइनल अकाउंट के बाद ही बैलेंस शीट का पोजीशन मिलेगा, फाइनल अकाउंट के बाद ही यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. सो द सेकेंड एस्पेक्ट्स, द मेजर पार्ट क्वेश्चन इसी में से आते हैं, वेयर वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर अ P&L अकाउंट, एंड देन ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. ये सेम है जो सोल ट्रेडर में था, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, हियर वी आर डीलिंग विद द पार्टनर. There was only one person as a businessman. Now today we are in this chapter, we would be taking 2 or more than 2 as a partner. So basics about, if you ask me what are basics in trading, so trading is which it's a nominal account. Why do I prepare trading? Just to find out my gross profit or gross loss. It's an account. Second, after finding gross profit and gross loss, we need to find out net profit, net loss. For that we prepare P&L account. And the last, we have to transfer net profit, net loss to the balance sheet and have to find out balance sheet. Next, so this is very basics. Once I take the chapter, I'll explain you all those things in detail. Let's go to the next chapter. After partnership, the next chapter devoted to is admission to the partnership. अब एक सिंपल से क्वेश्चन आता, why do somebody admit a new partner? तो आंसर टू इज, कोई नए पार्टनर को लाने का एडवांटेज होगा इसीलिए तो ले रहे हैं. सो व्हाट कुड बी एडवांटेज? मैन पावर, स्किल, मे बी अ कैपिटल, मे बी बिजनेस को ग्रो करेगा ना. सो देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर एडमिटिंग अ पार्टनरशिप. इन दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव कि अगर एक नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा. सर पहले 2 पार्टनर थे, उनका कुछ प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो था, वो 50% लेता था, ये 50% लेता. नाउ व्हाट कैन हैपन, इंस्टेड ऑफ न्यू पार्टनर व्हेन ही इज इनटू अ बिजनेस, तो यार उनकी प्रॉफिट शेयरिंग बदल जाएगी ना. पहले 2 में बंटवारा करना पड़ता था, अब 2 या 2 से ज़्यादा में बंटवारा करना पड़ रहा. दैट मीन्स वी हैव टू सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दूसरी बात, एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ऑब्वियसली यार उसको ब्रांड मिल रहा, उसको प्रॉफिट मिल रहा, उसको शेयर मिल रहा, देन ही हैज़ टू गेट अ गुडविल फॉर दैट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुडविल, and we also have to understand what are the methods of valuation of goodwill. Perfect. Next, when a new partner being admitted to the business, we have to revalue the assets and liability. For that, we have to open a revaluation account. So these are basic concepts that you are going to deal with admission. One more thing, my friend, profit sharing ratios are also in admission. This is also in retirement of the chapter, and this is also in death, because we would be dealing this in all the 3 chapters.
नेक्स्ट व्हाट आर बेसिकली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इज, वन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, the second is a partner's capital account, and then third you have to prepare a new balance sheet to the partner once the new partner being admitted. Next my friend, let's go to the next chapter, after admission retirement. Now एक question आता है, sir retirement of the partner क्या होता है? So if you explain me what is retirement of the partner. तो retirement का मतलब कि when two या more partner में से कोई एक partner business को छोड़ के जा रहा है. अब लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि छोड़ेगा क्यों? यार कुछ भी रीज़न हो सकता है. एज इज़ अ रीज़न, हेल्थ इश्यू इज़ अ रीज़न, ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग विथ यू कुड बी द रीज़न. सो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीज़न रिगार्डिंग वन पार्टनर लीविंग द बिजनेस. अच्छा, पार्टनर जब जाएगा तो क्या ऐसे खाली हाथ जाएगा? नहीं ना सर. जब आता है तो कुछ लेके आता है ना बिजनेस में. जाएगा तो फिर अपना शेयर लेके जाएगा, अपना कैपिटल लेके जाएगा, जो कुछ भी रहेगा पार्टनरशिप रिलेटेड वो सब लेके जाएगा. ओके तो इस केस में हमें करना क्या है? अगेन वी हैव टू सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वी ऑल्सो हैव टू सी गुडविल वैल्यूएशन, वी ऑल्सो हैव टू सी रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बनाना. हाँ, एडमिशन रिटायरमेंट डिफरेंस क्या है? एडमिशन में पार्टनर सब कुछ लेके आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग में उसको नया प्रॉफिट मिलेगा, बाकी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गुडविल उसको लेके आना पड़ेगा. रीवैल्यूएशन में उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा. रिटायरमेंट में पूरा ऑपोजिट होगा. बट हाँ, ये सब कंसेप्ट उसमें वापस आएंगे माय फ्रेंड. सो दीज आर मेजर कंसेप्ट दैट यू हैव टू, कि whether it's admission, whether it's retirement, or whether it is a death, you have to deal with profit sharing ratio. You also have to deal with revaluation account, and the third you have to deal with goodwill. Okay, next let's go to next chapter, death of the partner. तो पिक्चर दिख रहा है यार, पार्टनर थे जय वीरो दो लोग, उसमें से एक मर गया. अब डेथ हो गया तो क्या होगा सर? इन दैट केस अगेन आता है कि यार अगर वो पार्टनर बिजनेस में है, सालों साल मेहनत किया, ड्यू टू सर्टेन रीजन इफ ही डाइज, व्हाट टू डू विद दैट? ऑब्वियसली यार उसका अधिकार उसके लीगल हायर को जाता है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाता है. यू गॉट इट? अब उस केस में भी अकाउंटिंग कैसे होगी, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड. मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड P&L अकाउंट. Basically we have to understand profit sharing and goodwill. So whatever related to that we would be dealing in the chapter. Today I am basically trying to give you the brief about it. Next, the last of the partnership, that is about dissolution of the partnership. A statement is, what do you mean by dissolution? तो बच्चों डिसोल्यूशन मतलब क्या कि यार 2, 3, 4 मिल के पार्टनरशिप चला रहे थे और आज वो हैप्पीली बिजनेस को बंद करना चाहते हैं. अब बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, वॉलंटरी हो सकता है, स्टैट्यूटरी हो सकता है, जो भी रीज़न है डिसॉल्व करने के लिए. इन दैट केस क्या होगा? वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, वी हैव टू क्लोज द बिजनेस. सो वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, व्हाट आर द वे टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, एंड द लास्ट व्हाट इज अकाउंटिंग एडजस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट, these were the chapter which were devoted to understand partnership. So there are altogether 5 chapters that we dealt with which are totally devoted to understand partnership account. Now there is a chapter, it's bit of journal entry, it's bit of theoretical, and this is very easy chapter. A name of the chapter is bill of exchange. A question comes, what do you mean by bill of exchange? तो बॉस एक बात समझो, there are 2 types of transaction. एक है कैश and the second is credit. कैश ट्रांजेक्शन का कैश रिकॉर्ड हो जाएगा, तो जहाँ कैश ट्रांजेक्शन है वहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज है. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हेन दिस बिल ऑफ एक्सचेंज कम्स इनटू पिक्चर. लेट्स से आई एम अ सेलर एंड यू पीपल आर द बायर. यू वांट टू बाय फ्रॉम मी. ओके, दैट्स ओके, बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव कैश राइट नाउ, यू डोंट हैव मनी विथ यू. अब यार तुम मुझे जानते तो हो, तुम मुझसे सामान खरीदना चाहते हो, मैं भी बेचना चाहता हूँ, आई एम अ सेलर, बट प्रॉब्लम है सर तुम्हारे पास कैश ही नहीं. कोरोना पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब करें तो क्या करें? ओके, यू कम टू मी, यू से सर प्लीज़ इतनी बात समझो, 2 महीना क्रेडिट पीरियड दे दो, 2 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूँ. मतलब यू आर आस्किंग मी टू सेल यू ऑन क्रेडिट बेसिस. परफेक्ट. अब क्वेश्चन आता है, व्हेन आई सेल यू ऑन क्रेडिट बेसिस, so this chapter comes into picture. The title of the chapter is bill of exchange. अब bill of exchange क्या है? What is bill of exchange? So it is nothing but
negotiable instrument. Negotiable instrument drawn by the seller, मतलब वो बिल मैं बनाने वाला हूँ किसके लिए, आपके लिए, you buyer, asking you to make payment on a certain specific date. इसके लिए एक कानून है इंडिया में, and the law is Negotiable Instrument Act 1881. Under that you have 3 sections, section 3, 4, 5. Third talks about promissory note, 4 talks about bill of exchange, and the last talks about check. So basically we are not dealing with the section negotiable instrument, that's not part of the syllabus. Basically we are dealing here what we are trying to deal with, what do we mean by negotiable instrument. तो कुछ नहीं, एक सेलर बायर को बिल ड्रॉ करता है और कहता है कि भाई ये समय पूरा होने के बाद तू मुझे पैसा दे देना, और वो बिल बायर एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बिल एक्सचेंज बोलते हैं. जब मैं बिल ड्रॉ करता हूँ तो मैं सेलर से ड्रॉवर बन जाता हूँ. जब आप बिल एक्सेप्ट करते हो तो आप बायर से ड्रॉई बन जाते हो, और जो एंड में पेमेंट पे करता है और रिसीव करता है, तो पे करने वाला ही ड्रॉवी है बट रिसीव करने वाला पे है. सो हाउ मेनी पार्टीज, 3 पार्टीज टू द बिल एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे. तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था. सेलर, buyer comes and asks seller, please sell the goods to me on a condition that I'll pay you after 2 months, 3 months, depending on the period. Seller says, okay, I'm ready to sell you, but condition, I will draw a bill to you. And once that bill being accepted, it becomes bill exchange. अब क्वेश्चन आता है, सर सेलर का इसमें क्या फ़ायदा. अरे भाई वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसके 4 फ़ायदे हैं. एक है आप बिल ड्यू डेट तक रख सकते हो. दूसरा है वो बिल बैंक को दे के तुरंत पैसा ले सकते हो, दैट इज डिस्काउंटिंग द बिल. नहीं तो तीसरा, आई एज ए सेलर वांट टू मेक पेमेंट टू समबडी, नाउ आई डोंट हैव कैश, आई कैन टेक दैट बिल एंड गिव इट टू दैट पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ द बिल. और द फोर्थ, आई कैन कीप द बिल और आई कैन गिव इट टू द बैंक एंड बैंक विल इन कैश फॉर मी, दैट इज कॉल्ड बिल सेंड फॉर कलेक्शन. अब क्वेश्चन आता है, सर इस चैप्टर में क्या पढ़ना. वन इज फॉर्मेट ऑफ द बिल, and then second is you have to study the journal entry related to it. So very easy entries in the books of buyer, in the books of seller, in the books of pay. तो ये easy chapter है. कुछ 10, 12, 15 journal entry जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, रिपीट कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा, and I'm sure I'll make you learn that. Okay. Next बच्चों, अब आगे बात आते कंपनी अकाउंट्स, my favorite. अब कंपनी अकाउंट्स का एक सपना मैं बोलता हूँ यार. See, we all have a dream, you know. What's the dream? कि यार कभी ना कभी किसी ना दिन अपनी कंपनी हो यार, या कोई बड़ी कंपनी में काम करूं. अब ये बात समझो सर, कंपनी का कुछ बेसिक्स जो है ना वो आपको समझना है कि कंपनी बनती कैसे, हाउ डज कंपनी इज फॉर्म. तो सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव कि कोई बिजनेस चलाना है. लेट्स से वी वांट टू रन अ बिजनेस. अब बिजनेस चलाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो बिजनेस के आइडिया, दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए. अब इन सब के लिए वी नीड अ कैपिटल. अब कैपिटल लाएं यार, कहाँ से लाएं. अकेले तो ला सकते बट उसमें लिमिटेड इश्यूज है कि उतना कहाँ ज़्यादा हो सकता है. सो वी ट्राई टू टेक द कैपिटल फ्रॉम बिग पीपल. इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे यार, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, धीरू भाई अंबानी की कंपनी कैसे इतनी बड़ी बनी, जेफ बेजोस उसकी कंपनी कैसे इतनी बड़ी बनी. सो वी वुड बी स्टडिंग अबाउट ऑल अबाउट कंपनी, कि कंपनी होती क्या है, कंपनी कैपिटल कैसे रेज करती है, कैपिटल रेज करने का प्रोसेस है, हाउ डू यू रेज कैपिटल, यू इशू प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक एट लार्ज. आफ्टर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस यू इशू शेयर्स, पीपल सब्सक्राइब योर शेयर्स, दिस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी देयर. आफ्टर दैट यू रेज द कैपिटल, दैट इज हाउ द कंपनी इज फॉर्म. तो बेसिक्स इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कैपिटल. लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल के 2 टाइप के कैपिटल होते हैं, एक होता है ओनर फंड, एक होता है